Hello everyone and welcome to the channel. So guys, we are back with another session for UPSC CSAT preparation for your comprehension part, and today we are going to begin with a new topic, that is level 1 passages. So guys, in the previous sessions we had covered the basics, the fundamentals of comprehension. Then we individually discussed what and how to crack inference corollary based questions, then assumption based questions, then your conclusion or a critical message based question. Today we are going to start with the practice of level 1 passages. We'll see how to approach them and what to work in them. So let's begin the session guys, but before we go any further, don't forget to like the session, don't forget to share the video, and if you're new here, please subscribe to our channel to get more such videos for free. So let's begin, guys. Before we go any further, let me inform you about the comprehensive guidebook for your CSAT preparation. And in this book, you have everything that you need to start preparing for your CSAT exam, ranging from syllabus, strategy, and sources for individually all the subjects, including quantitative aptitude, reasoning, English, and whatnot. So this is a free ebook. You can download it, and the link to download this book has been given in the description of the video. So go download this book and get benefited from it. This is free of cost. All right, guys. So let's move to our session now. Now, before we go any further, let me just reiterate, let me just give you another, a few more tips to just to control your comprehension. So first is, you read the passage once and get hold of the relevant theme. You understand the central theme of the passage, you understand the context of the passage, then you go through the question and answers and eliminate the most inaccurate ones. There are options which I have told you in the previous sessions. There are extreme options, there are contextually incorrect options which are contradictory to the statements in the, or something that is not even mentioned in the passage. So those options are to be eliminated in, from the first, from the get-go. Right now, what to do after that? With the shortlisted answers at hand, read through the passage again and correlate the degree of accuracy with the passage to identify the answers. So you need to correlate the degree of accuracy. How accurate is the information that is given in the answer, in the option. When trying to spot the answers, more importantly, shed off your direct opinions and prejudices. I told you, whatever you think or you know about the topic should be kept aside, and it should only be based on the premises of the passage. Then if you are in doubt, extend the given passage with your option you choose from. This way you can figure out which options adapts into the story well. Right, so extend the given passage with the options you have chosen. So when you add that answer to the passage, you'll see this is a continuation of the passage. So that is what will give you the right context, the right understanding that if you've chosen the right answer or not. So I'll show you how to do it today. So let's practice the passages. These are some previous year passages that I'm going to discuss with you. So let's begin, guys. First, we have to find the most logical and rational inference, right? So now let's read the passage. Now, global population was around 1.6 billion in 1990. Today, it is around 7.2 billion. So 1990 mein it was only 1.6 billion, and I think in today, I think in 2020, you can say it is 7.2. So it has grown 4 times, 400%. Right, so global population was 1.6 billion in 1990, and today it is around 7.2 billion and growing. Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. So unlike Europe and North America, I mean, this is up till here what he's saying, the population is growing exponentially, and it will keep on growing in the future as well. तो अब तक तो उसने ये बात बोली है पहले सेंटेंस में. अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो. Unlike Europe and North America, यूरोप और अमेरिका की से unlike them, ठीक है, वेयर ओनली 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. अमेरिका, यूरोप में जहाँ पे सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, अराउंड 47% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. जबकि हमारे इंडिया में वही परसेंटेज कितनी है, लगभग 47%. तो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस. वहाँ पे कितने कम लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड और इंडिया में कितने ज़्यादा हैं. Right, even if India continues to do well in the service sector and manufacturing sector picks up, कि चाहे इंडिया
इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर, चाहे सर्विस सेक्टर में भी अच्छा करे इंडिया, एंड इवन इफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ भी जाए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 2030 व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो 2030 तो बहुत ये पुराना कोई पैसेज है, 2023 में ही हो चुका है, राइट? सो व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, नियरली 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अब वो क्या करे, चाहे कितना ही कर लो, मतलब 40-42% तो भी प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहेगी इंडिया की पॉपुलेशन। सो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस? प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। यस, ट्रू, ये सही इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स, इकोनॉमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इकोनॉमी तो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, राइट? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ये थोड़ा सा अभी देखते हैं आगे। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इन्फ्लुएंस निकालना है कि भाई पॉपुलेशन को रोको। इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। अब देखो इसमें गाइस कहीं पे भी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात नहीं हुई है, कहीं भी पैसे की बात नहीं हुई है, सिर्फ दो रिलेशनशिप बताए हैं उसने कि पॉपुलेशन कितनी है और एग्रीकल्चर पे कितनी डिपेंडेंट है। पहले पहले तो उसने क्या बताया कि कितनी पॉपुलेशन होने वाली है आगे, फिर बताया कि जैसे यूरोप अमेरिका में जहाँ पे सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडिया में 47% डिपेंडेंट है, ठीक है? और वो क्या कह रहे हैं कि चाहे इंडिया सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा करने लग जाए, ठीक है, लेकिन तब भी 2030 तक जब हम सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके होंगे, स्टिल 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रिडोमिनेंट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अभी भी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहने वाली है, कहीं पे इकोनॉमी की बात नहीं की उसने, ठीक है, कि एग्रीकल्चर इतना वीक है, एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग है, वो तो बस ये कह रहा है कि इंडिया विल बी प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन विल प्रीडोमिनेंटली बी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है? तो ये है, तो इसमें क्या निकाल सकते हैं? प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। इंडियाज इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स, इकोनॉमी कहीं बात नहीं हुई है हम, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू करो। फार्मिंग कम्युनिटीज टू स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। अब फिर वही बात आ गई, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। देखो जो सही रेफरेंस है, जो सही इन्फ्रेंस है यहाँ पे, वो क्या है कि अगर हमें ये पता लग रहा है इस पैसेज से कि majority of the India's population is dependent on agriculture, so what can be inferred? Prosperity of agriculture is of critical importance to India, कि भैया एग्रीकल्चर का प्रॉस्परस होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतनी पॉपुलेशन अगर, ठीक है, गरीब हुई, गरीब रही, तो देयर विल बी प्रीडोमिनेंटली पॉवर्टी इन इंडिया। तो हमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को देख के चलना पड़ेगा, राइट? तो वही वो उसका इन्फ्लुएंस निकाल रहा है कि भाई अगर इतनी पॉपुलेशन अगर इंडिया में डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो उस पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी इंडिया के लिए क्रिटिकल बन जाती है। सो दिस इज हाउ यू इन्फर लॉजिकल रेफरेंस। अब देखो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन इंडिया, बट ये कहीं पे गिवन नहीं है पैसेज में। और गाइज मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज़ पैसेज में मेंशन नहीं है उसको अज्यूम मत करके चलो। अब वो अज्यूम करके चलोगे, वहीं पे बायस आ जाना शुरू हो जाएगा आपके आगे, ठीक है? चलो गाइज एक और पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, ये देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें भी हमें कॉरोलरी निकालनी है, वही इन्फ्लुएंस निकालना है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेसेस आर अननोन। बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस, ऐसे माइक्रो बैक्टीरियाज के मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस, जो खाने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका हमें पता भी नहीं है। सो मैनी पैथोजेंस आर दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन। फूड कंटेमिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। फूड कंटामिनेशन कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वो खेत में, चाहे वो आपकी प्लेट में है तब। सिंस मोस्ट केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, सिंस मोस्ट केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग जैसे खाना से पेट खराब हो गया, ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूड बॉर्न इलनेस इज अननोन, कि भाई जो सच्चाई है पूरे वर्ल्ड में कि ग्लोबल फूड बॉर्न इलनेस की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो पता ही नहीं चलते, क्योंकि लोग फूड पॉइजनिंग को रिपोर्ट ही नहीं करते। इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हैव led to improvements in international monitoring have led to greater public awareness, कि भाई लोगों को पता लगने लग गया है। Yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace. Yet rapid globalization of food production, कि भैया ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, खाना बन कहाँ पे रहा है, ये मैकडोनल्ड्स के बर्गर बन कहाँ रहे हैं, अमेरिका में और
प्रिजर्व होके प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में और कंट्रीज़ में, और वहाँ पे 2-2 3-3 महीनों के बाद वो कोल्ड फ्रीज़र से निकाल के फिर उनको थॉ करके और उनको पका के माइक्रोवेव में, ओवन में, और फिर उनको कस्टमर को सर्व किया जाता है। तो देखो, अब वो अगर कहीं पे भी वो आलू ख़राब था तो उसको कहीं ट्रैक नहीं किया जा सकता। वो जब वो खेत में भी ख़राब हो सकता है, वो स्टोरेज में भी ख़राब हो सकता है, वो यहाँ आके भी ख़राब हो सकता है। तो यही वो कह रहा है कि ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पता नहीं फूड कहाँ का फूड है, कहाँ पे डिलीवर हुआ है वो, और वो कहाँ ख़राब हो गया है वो। वो क्या कह रहे हैं कि बेशक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग से पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ी है कि खाने की चीज़ों से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में, येट जो रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। उनको ना रेगुलेट कर सकते ना ट्रेस कर सकते हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स, सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, के ऑफिशियल ने क्या बोला है कि हमारी प्लेट में दुनिया रखी है हमारे सामने कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मैं पिज़्ज़ा का ब्रेड इंपोर्ट करता हूँ, मुझे बर्गर खाना है मैं बर्गर के बन, आलू पैटीज में जो उसके या जो भी उसमें अंदर डलता है वो सब मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेयोनेज़ इंपोर्ट करता हूँ, जबकि वेजिटेबल्स भी कभी कभी इंपोर्ट कर देते हैं लोग। तो सोचो, पता नहीं वो कितनी दूर से इंपोर्ट होके प्रेजर्वेटिव में वो चीज़ आई है, तो उसमें जो बीमारियां हैं जो उसके साथ है या पॉसिबल जो डिजीजेज हैं वो कहीं ट्रैक नहीं हो सकती। तो वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा मतलब फूड सप्लाई हो रही है पूरी दुनिया से, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो उसने अब क्या दिया है इस ऑप्शन क्या निकालना है हमें 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 कॉरोलरी ढूंढने हैं। तो ऑप्शन है, विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क्स। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेसेस। ये देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन को शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया करो कि फूड प्रोसेसिंग है वो सारी बीमारियों की जड़ नहीं। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली फूड प्रोड्यूस्ड ओनली, कि जो सिर्फ लोकली प्रोड्यूस होता है फूड सिर्फ उस पर डिपेंड करो। नो, ये भी गलत है। ठीक है, कि बिल्कुल ही लोकल है उसी पे डिपेंड करना हो जाए, तो भैया अगर वहाँ पे अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फिर तो फंस जाओगे तुम। तो सप्लाई चेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रैक रेगुलेशन और ट्रैकिंग होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। हाँ, ये हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन की ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा कर्टेल कर देना चाहिए। लेकिन जो असली कॉरलरी में, अब देखो ये अजम्पशन है शुड बी, अब ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन डाल रहा हूँ मैं कि ऐसा कर देना चाहिए, राइट। और ये भी वही अजम्पशन था, वी शुड डिपेंड ऑन, ये भी हमारी क्या थी, अजम्पशन थी। हमें ढूंढना क्या है यहाँ पे, कॉरलरी। कॉरलरी सही क्या है कि जितने ज़्यादा खाने के ऑप्शंस होंगे उतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ती जाती हैं। जितना ज़्यादा खाना आप बाहर से मंगवाओगे, दूर दराज से मंगवाओगे, जितना मतलब टाइम लगेगा उसको खेत से आपके खाने मतलब पेट तक या प्लेट तक पहुंचने में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसमें खराबियां हो सकती हैं जब तक वो सही तरह से रेगुलेट या ट्रैक ना किया जाए। तो जितने ज़्यादा खाने के ऑप्शन उतने ज़्यादा रिस्क, यही वो कह रहा है वो कि दिस मेक्स द इंक्रीजेज द कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी। ये देखो, yet the rapid globalization of food production increases customers vulnerability by making food harder to regulate and trace, and we have the world on our plates। ये कहना चाह रहा है वो कि जो खाना है दुनिया में कहीं भी बनता हो, चाहे वो आप यहाँ बैठ के खा सकते हो, तो अब लेकिन उसमें फिर उतनी चांसेस प्रॉब्लम के हैं, क्या एलर्जी है, क्या उसमें बीमारियाँ हैं, क्या पैथोजेंस आए हैं वहाँ से। यही कह रहे हैं, जितने ज़्यादा खाने के ऑप्शन उतनी ज़्यादा रिस्क। तो दैट इज़ द राइट कॉरलरी दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम द पैसेज। तो ये अजम्पशन कॉरलरी का ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन पैसेज को लॉजिकली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे हम और भी सेशंस लाते रहेंगे और भी फ्यूचर में गाइज। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द सेशन। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर पीयर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। एंड गाइज, अगर आपको लग रहा है कि you need a complete ecosystem to prepare for your CSAT exam, we have launched a comprehensive course where just in 100 hours we promise to make you ready for your CSAT exam. Now in this course we are providing you all the concept classes along with their PDFs. Then there is test series which you can take to practice. Then there will be weekly live doubt sessions for you where we will be interacting with you live so that we can tackle your doubts. And then there will be live revision classes before the exam where we can revise and brush up on the concepts again. And the faculty members, Vishnu sir is there for the quantitative aptitude part, I am there for English, and Meghna ma'am for reasoning part. So I hope that you can get benefited. और guys याद रखना, मैं बहुत बार बोलता रहा हूँ कि
सी सेट की प्रिपरेशन एग्जाम से 1 महीना 2 महीने पहले नहीं होती, वो अब शुरू करनी है आपको, ताकि बाय द टाइम अगला साल शुरू हो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, और वो एक टेंशन आपके दिमाग से निकल चुकी होनी चाहिए, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. So thank you so much for your time, for your precious inputs, guys. If you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So the link for our courses have been given in the description of the video, and also if you want the PDF of this session, you can also get that from the Telegram channel. The link for that also has been given in the description of the video. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on working in the right direction, and I'm sure you'll do very well in the exam. So having said that, I'll take your leave today. I'll see you again tomorrow for another session. We'll practice more such passages in the session tomorrow. So till then, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.